Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. Good morning, all of you. Please start your video. Good morning, sir. Good Good morning, sir. Ayushman Anand present. Ayushman, good morning. How are you? Good morning, sir. Good morning. Ayushman, how are you? Sir, fine. Sir, I am fine. Yes, everyone, please start your video. Sir, your voice is coming very low. Is it? Let No, me sir. see your audio settings. Is it fine now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, your voice is coming very low. Is it coming fine now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes. we have to form internal angle. सो बेटा मैंने कितनी प्रॉपर्टीज आपको नोट करवा दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में Clear angles. I have made you Clear angles you can explain. Sir, I have interior angles. Sir, compounding angle. Two interior angles. Sir, three compound angles. Sir, I have excuse me. explained हाँ जी बेटा Sir, Yes. we have done in the last class What alternate exterior angles. we have done corresponding angles, we have done alternate interior angles, and we have done alternate exterior angles. So three types sir. of angles, three types of properties we have done. Sir, we have to start from consecutive interior Transversal angles. and parallel lines. Okay, so the last one, the fourth one is this is the last one. You can note down co-interior angles. तो पहले हम समझेंगे कि what are co-interior angles. Let's see. So you don't have to draw the figure again. The figure was already drawn. In the same figure you have to see. Okay, दोबारा नहीं draw करना है. I know not. You don't have to draw the figure again. Okay, sir. Okay. So this is the transversal. And there are two parallel lines. Sir, we have to not draw the figure. No, you don't have to draw the figure. Because you have already drawn the figure ना आप पहले ही बना चुके हैं. You have already marked the angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The same figure is used in all the four types, all the four properties. हमने बार बार थोड़ी बनाई है फिगर. Same figure को use किया है.
Okay. So now I'm marking the angles. You will not mark the angles you because you have not drawn the figure itself. So this angle I marked angle 1. This one. इसको मैंने angle 1 mark किया था. Am I right? Yeah. Angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7, and 8. So these are the 4 angles. Sorry, 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have to find the pair of co-interior angles in this. Co-interior angle क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए मेरी बात. And then you will tell me that which pair of angles is a pair of co-interior angles. कौन सा वाला pair आप है ये आपको बताना है, ठीक है? So first of all, listen the definition for co-interior angles very carefully. In this, the two angles जिनकी हम बात करेंगे co-interior में, the pair of co-interior angles will have both the angles in the interior, because आपको यहाँ पर interior word दिख रहा है देखिए, interior दिख रहा है यहाँ पर. So दोनों एंगल एक तो इंटीरियर रीजन में से होंगे. इंटीरियर रीजन कौन सा होता है? पैरेलल लाइंस के बीच वाला जो रीजन होता है, दैट इज द इंटीरियर रीजन. ओके. एंड सेकेंड थिंग, को वर्ड का मतलब क्या हुआ? को मतलब Consecutive. the two angles will be from the same side of the transversal. दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होंगे. अगर एक एंगल लेफ्ट में है तो दूसरा एंगल भी लेफ्ट साइड में ही होगा. अगर एक राइट में है तो दूसरा भी राइट साइड में होगा. क्लियर? So now can any one of you tell me a pair of co-interior angles in Angle this? 2 and angle 7. Angle 2 Angle 1 and and angle 8. angle 2 and angle 7, angle 1 and angle 8. Excellent, outstanding. बच्चों ने आंसर दे दिया है already. So Angle. yes, बताओ बेटा दक्ष. Co-interior दो ही पेयर हैं. 2 and 7 is the first pair and 1 and 8 is the second pair. तो लिखेंगे here there are Excuse me, sir. yes Sir, sir, we have to make this diagram also. बेटा आप लोग ये पहले ही बना चुके हैं. ये आप फिगर जब आपने टॉपिक की हेडिंग लिखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, आपने हेडिंग लिखी थी. उसी टॉपिक की हेडिंग में आप एक बार फिगर बना चुके हैं. वही सेम फिगर Properties of a transversal and parallel lines in we have drawn that figure. हाँ ये फिगर बनाया था आपने. वही सेम फिगर सब जगह एप्लीकेबल है. सो यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट अगेन. Okay, from that figure only you have to tell all these things. So here there are two pairs of co-interior angles. The first pair is angle 1 and angle 8. Second pair is angle 2 Excuse me, sir. and angle 7. Yes. Sir, in this, sir, if in this, if the angle value is same, so the second angle value will also be same, like in other No. properties. No. अब यहाँ पर लिखेंगे if the lines are parallel, then the sum of co-interior angles is
180 डिग्रीज। को इंटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंगल्स। जो भी आपके ऑल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इफ लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपने पढ़ा होगा, देखिए मैंने लिखवाया है, इफ लाइंस आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो लिखा है आपने, एक और लिखा है, Yes, sir. if alternate interior angles are equal then the sorry if alternate angles if the lines are parallel then alternate angles are also equal। ये भी आपने लिखा हुआ है। तो उन केसेस में जब ऑल्टरनेट एंगल है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो जाती है। दैट मींस फॉर एग्जांपल लेट मी टेक एंगल 1 एंड एंगल 7। एंगल 1 और 7 आर अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 और 7 दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर 1 एंड 7। ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। दैट मींस एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल में एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल नहीं है। एंगल 1 एंड एंगल 8 आर अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल, सो दे आर नॉट इक्वल। वहां पर स्पेशल चीज क्या है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड पेयर कौन सा है को इंटीरियर एंगल का यहाँ पर? Which is the second pair? Sir, angle 2 and angle 7. Angle 2 and angle 7. Excellent। यहाँ पर भी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 degrees. Okay, so in case of co-interior angles, the sum of the angles is 180 degrees. Sir, done. Sir, done and understood also. Sir, done. Yes, Chalo, sir. if I tell you the value of angle 1, can you tell me the value of angle 8? I'm giving you the value of angle 1. Suppose angle 1 is 70 degrees, 70. What is the value of angle 8? 180 minus 70. 110. 110 is the answer. Very good. Sir, how? कैसे निकालेंगे बेटा? Sir, 110. 110 plus Sir, 110 is the answer. equal to 180 degree. Because एंगल 1 अगर आपका 70 है तो 70 में आप क्या ऐड करेंगे? You will add 110. Only then the sum will be 180. Am I right or not? तभी तो sum 180 आएगा। Yes, sir. तो ये तो एक तरीका है फाइंड करने का। दूसरा तरीका क्या है, जो प्रॉपर मेथड है फाइंड करने का? द प्रॉपर मेथड इज, आप ये जो मैंने लिखा है, बिकॉज एंगल 1 180 minus 70. फर्स्ट यू विल से दैट एंगल 1 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू 180। पहले आप बताएंगे क्यों इक्वल है, व्हाई द सम इज 180, बिकॉज दे आर को-इंटीरियर एंगल्स। हमें पता है पहले से ही को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। सो एंगल 1 की जगह आप यहाँ पर 70 डिग्री लगा देंगे वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? इट इज 70 प्लस एंगल 8 जो हमको फाइंड करना है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो 70 विल गो टू RHS एंड माइनस हो जाएगा। पढ़ा है आपने इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? 180 माइनस 70 जब RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ऐड हो रहा था, RHS में जाके माइनस हो जाएगा। RHS का मतलब मालूम है? RHS मींस राइट हैंड साइड। Left hand side. Right hand side, left राइट hand हैंड side. साइड, हाँ। Linear तो equation ये well done. इक्वल टू ये लगा हुआ है, इक्वल टू, ये इक्वल टू लगा है। So done this one. इक्वल टू के जो लेफ्ट की जो चीजें होती हैं, दिस इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज नोन एज राइट हैंड साइड। ये RHS होता है, ये LHS होता है। शॉर्ट में RHS LHS बुलाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके, वो के लग रहा है यार, बट इट इज Sir, RHS। sir, excuse me. यस सर। Sir, there is one method to find 180 minus 70. Then we got the value of 8. तो एंगल 8 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना हो गया? 110। सो ये मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि कैसे आप फाइंड करेंगे। यू डोंट हैव टू नोट डाउन दिस इन योर कॉपीज। ओके, 110 डिग्री आ गई एंगल 8 की वैल्यू। ओके, चलिए, वेरी गुड। Sir, यस आशिका यादव।
Sir, please scroll it up. Acha, sorry. What is that? This thing? Is it visible, Divyanshi? Yes, it is visible, so I have done. Okay, very good. Sir, I have done. Very good, beta. Very good. It's very nice to see so many students attending the class Sir, because of the PTM. because of the PTM. PTM में ऐसा क्या चमत्कार हो गया? Very good. Very nice to see so many students attending the class. Yes, sir. Sir, but at the last class of students not attend. Few. Sir, I was not able to complete the Sir, work. when we will start the चलिए exercise. now I will be explaining all the 4 properties थोड़ा और डिटेल में कैसे उनको यूज करना है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा. Sir, more 4 properties. So these are the 4 these are the 2 parallel lines and the transversal and all the 8 angles यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको. ओके अब मैं आपको यहाँ पर अरे ये क्या है बेटा प्लीज कीप योर माइक ऑफ एवरीवन. आपके घर के पास से ट्रक पास हो रहे हैं माइक ऑफ कर लीजिए. पता लगा ट्रक आपके घर से यहाँ पर मेरे घर तक आ गए. No, sir, in my home there is no truck. In your home there is no truck? No, sir. I know your My home is land very is no big. truck. I know your house is very big, but do you have any truck in your inside your house? Arey, no, sir, I'm joking. Are you are joking? Oh, I thought that you are talking seriously. दक्ष गंगार. चलो बेटा आगे बढ़ जाएं. Yes, sir. Yes, sir. So Our car I speed hope is- you all have understood all the 4 properties. मैं चारों के नाम Yes, यहाँ sir. पर लिख रहा हूँ एक बार और for your help. यही चारों प्रॉपर्टीज यहाँ पर अभी यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं. वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन, वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज. अभी नहीं कर रहे हैं. told only 3 properties. बेटा 4 हो गई. फर्स्ट वन मैं लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग द नेम्स. सी Corresponding. corresponding angles. बेटा मेरी राइटिंग बहुत खराब है. इसको मेरे को इग्नोर कर देना. इसके लिए मुझे पता है सिर्फ मेरी राइटिंग की वजह से जब मैं मरूंगा तो मुझे हेवन में नहीं भेजा जाएगा. आई नो बट प्लीज इग्नोर मी फॉर माय हैंडराइटिंग. No, sir. एक्सक्यूज Your मी. handwriting in real whiteboard is very good. Okay. So corresponding angles. Second one was alternate Interior angle. interior angles. Alternate interior. Very good. Alternate exterior. Consecutive. Alternate exterior. बेटा शॉर्ट में एक्सटीरियर लिख दे रहा हूँ मैं. ठीक है फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ. EXT लिख दिया मैंने. समझ जाओगे. Yes, sir. एक और छोटा तरीका और इससे भी छोटा तरीका है लिखने का. वो पता है क्या? जैसे मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख के दिखाता हूँ आपको. और छोटा तरीका क्या है? AIA. ALT Yes, INT and angle एंगल. sign. ऐसे ये एक और छोटा तरीका है लिखने का. ठीक है. एंड द लास्ट वन जो अभी आज ही हमने पढ़ा दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. Excuse me, sir. यस यस बेटा बताओ कुंजन. Alternate exterior angle. यस बेटा मैं अभी बताता हूँ आपको. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना कुंजल
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऑल्टरनेट वर्ड का यूज हो रहा है। ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब होता है कि एक चीज ऐसी तो दूसरी चीज वैसी, एक दूसरे की उल्टी चीजें होती हैं। तो दैट मीन्स इफ वन एंगल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल की राइट साइड में होगा। ट्रांसवर्सल क्या होती है? दिस इज द ट्रांसवर्सल। ये ऑरेंज कलर वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ये पूरी लाइन आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जो दो दो पैरेलल लाइंस को काट के जाती है, यानी कि ऑरेंज वाली लाइन दोनों लाइन को काट रही है, देखिए पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। सो दिस ऑरेंज लाइन विल बी नोन एज ट्रांसवर्सल। और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? ग्रीन कलर वाली जो लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल लाइन। इसलिए मैंने दोनों के लिए डिफरेंट कलर चूज किया है सो दैट मैं आप लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। मैं जानता हूँ आई एम वेरी हाईटेक इन ऑल दीज थिंग्स। इतना एडवांस टीचर आपको अपने स्कूल में कोई दिखा है मेरे जितना एडवांस? देखिए इतने ग्रीन बोर्ड और ये वो अलग अलग कलर्स No, sir. देखा बेटा? Sir, मैं आपने तो पहले हमेशा आपने हमेशा नोट किया होगा, कभी आपने मेरे मुंह से मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं सुनी होगी। मैंने कभी आप लोगों से नहीं कहा कि मैं इतना डाउन टू अर्थ, इतना हम्बल, इतना इंटेलिजेंट, इतना एक्सीलेंट टीचर हूँ। कभी मैंने कहा अपने बारे में? कभी नहीं कहा। नहीं सर, कभी सर मैंने मैं अपने तो बहुत 5th क्लास में पढ़ा भी। फिफ्थ में पढ़े थे ना सिद्धार्थ? देखो सिद्धार्थ मुझे फिफ्थ से जानता है। सिद्धार्थ जानता है कि मैं इतना एक्सीलेंट, मैं इतना फोर्थ से जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ सर। आउटस्टैंडिंग, इतना एक्सीलेंट टीचर होने के बाद भी कभी मैंने अपनी तारीफ करी बेटा? बताओ, कभी नहीं करी होगी। नो सर। सर देखा, मैं आपको 5th से जानता हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो देखिए बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो ऑल्टरनेट वर्ड का मतलब क्या हुआ? एक एंगल ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में होगा, दूसरा ट्रांसवर्सल की राइट साइड में होगा। लेफ्ट साइड बोले तो ये वाली साइड, दिस इज नोन एज द लेफ्ट साइड, एंड ट्रांसवर्सल की राइट साइड ये वाली होगी राइट साइड, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल की दो अपोजिट साइड्स हैं। एंड एक्सटीरियर, एक्सटीरियर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? दोनों एंगल आपके एक्सटीरियर पार्ट में होंगे। एक्सटीरियर पोर्शन कौन सा है? लाइंस जो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि ग्रीन कलर वाली जो लाइंस हैं, ग्रीन कलर वाली लाइंस के बीच में जो रीजन है, अगर बीच में से एंगल हम उठा लेंगे, फॉर एग्जांपल एंगल 1 2 7 और 8, 1 2 7 एंड 8, ये सारे इंटीरियर रीजन में से हैं। इंटीरियर, इंटीरियर मतलब बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। एंड एक्सटीरियर रीजन में से कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये सारे, ये चारों एंगल आपके एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे, ठीक है। सो आपको चूज करने हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो दो एंगल ऐसे चूज करो जिसमें से एक एंगल लेफ्ट साइड का हो, दूसरा एंगल राइट साइड का हो, दैट मींस ऑल्टरनेट होने चाहिए। एंड एक्सटीरियर में से चूज करना है। अब सोचिए कि कौन सा पेयर हो सकता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 4 एंड एंगल 6। Angle 5 and angle एंगल 4 एंड एंगल 6। Angle 6 and angle 3 and angle 5. Absolutely correct. Angle 4, there are two pairs. Angle 4 and angle 6, एक different color ले लेते हैं, yellow color ले लेते हैं। Angle 6 and angle 4, ये दो एंगल देखिए मैंने येलो कलर से मार्क करे हैं। These are a pair of alternate exterior angle। एक पेयर तो ये, दो पेयर हैं। So first pair is angle 4 and angle 6. Why? Because angle 4 ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, देखिए राइट साइड में है, एंड एंगल 6 इज ऑन द लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में है। दोनों एंगल एक्सटीरियर में है, एम आई राइट? एक्सटीरियर रीजन में से हैं दोनों एंगल। यस सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाइट कलर से एंगल 3 एंड एंगल 5। ये दोनों एंगल भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। क्यों है? बिकॉज दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑन द ऑल्टरनेट साइड्स, ऑल्टरनेट साइड में से है, दैट मींस लेफ्ट और राइट, दो, एक एंगल लेफ्ट में दूसरा राइट में है। एंड both the angles are on the exterior side, exterior portion of the parallel lines, parallel lines के exterior portion में से हैं, so they are alternate exterior angles। alternate exterior angle की प्रॉपर्टी क्या होती है? if the lines, green lines जो आपको दिख रही हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो alternate exterior angle आपके क्या हो जाते हैं? they are equal। and if angle 3 is, suppose मैंने angle 3 बताया 40 डिग्री का है, तो एंगल 3 के साथ दूसरा एंगल कौन सा है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर वाला? एंगल 3 के साथ एंगल
5। 5. सो एंगल 3 की वैल्यू अगर 40 है तो एंगल 5 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 40 डिग्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Clear. Very clear. Thank Sir, वेरी clear. गुड। सो ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा वैल्यूज, आप लोग मुझे आंसर देंगे और मुझे ये भी बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का आपने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, कोशिश करिएगा, ट्राई करना, गलत हो जाएगा कोई Sir, बात I नहीं। will try. वेरी गुड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिस इज समथिंग वेरी अर्जेंट। यस, सो Excuse मैं me, sir. आपको, यस बेटा, Sir, why you not use real whiteboard? beta, because I think this is easier to use, and second thing, I can use different colors in this to explain the student in a better way, है ना, और थोड़ा ये क्लियर भी दिखता है। व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा ब्लर ब्लर दिखता है। So that is why, these are the reasons. I think you want me to use the whiteboard because you want to see my face while I am teaching. Am I right, Daksh Gangwar? Daksh Gangwar, am I right? Okay, sir. अरे बेटा आशिका, ओके वाली कोई बात ही नहीं करी मैंने। चलो बेटा, आदित्य पाठक हंस रहा है, देखो बेटा, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑल ऑफ यू लिसन वेरी केयरफुली। मैं यहाँ पर एक एंगल आपको दे रहा हूँ। Yes, सपोज sir. आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ एंगल 1। सपोज मैंने आपको कह दिया एंगल 1 इज 75 डिग्रीज। कितना दिया, 75 डिग्री। अब आपको मुझे बतानी है, यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ एंगल 5। एंगल 5 बताना है, और बताना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा, ये भी बताना है। ये 4 प्रॉपर्टी है, इन्हीं चारों में से कोई प्रॉपर्टी यूज होगी। Angle 5 is Sir, 75 degree 100. With corresponding. as we use corresponding angles property. एंगल 1 एंड एंगल 5। 105 degree and we are using चलो, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आई एम अप्रिशिएटिंग एवरीवन फॉर गिविंग द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी तक सही आंसर नहीं बताया है कि क्या है, बट आई रियली अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर्स। वेरी गुड। Okay, sir. Thank you, sir. कुंजल वर्मा बेटा बताइए, व्हाट डू यू थिंक? Corresponding angle. कुंजल, what do you think, what is the answer, what is the value of angle 5? Sir, I think the value would be 105 degrees. 105 degrees. Okay, very good, well tried. Anyone else? Sir, I can try. Yes बेटा, बताओ बताओ। will be equal. Sir, angle 5 degree, angle 5 value 75 degree as we use corresponding angles. वेरी गुड, वेल ट्राइड बेटा दक्ष, वेरी गुड। अभी मैं सही आंसर बता दूं। हमाद, व्हाट इज योर आंसर, और कौन दे रहा है आंसर? Sir, the 75 degree. नाम बताओ बेटा। sir 80 degree. Sir, Lakshmi. Lakshveer is saying the answer is 75 degrees. Very good, Lakshveer. Anyone else? Sir 80 degree. 80 डिग्री। चलो, ये भी वेरी गुड। Sir, 75 degree. Sir, I think 75 degree. सिद्धार्थ ने कहा है 75। 75। सिद्धार्थ ने 75 कह दिया, तो सिद्धार्थ का 105 आंसर तो मैं गलत कर ही नहीं सकता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा है 75 है, तो 75 ही है। द Sir, आंसर I also say 75. अरे बेटा, मैं मजाक कर रहा हूँ। यस, मुझे पता है, दक्ष ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। द आंसर इज 75 डिग्री।
दिस इज द करेक्ट आंसर. डू यू नो द रीजन? आपने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे, कौन से होते हैं जरा देखो बेटा. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने नोट कराए हैं. एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल होते हैं. देखो एंगल 1 और 5. Yes. Yes, sir. हाँ If the lines are parallel, then corresponding angles are equal. हाँ. तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? एक एंगल इंटीरियर में होता है, दूसरा एक्सटीरियर में होता है. एंगल 1 इंटीरियर में से, एंगल 5 एक्सटीरियर में से, एंड दोनों एंगल ट्रांसवर्सल की सेम साइड में होंगे. इसीलिए यहाँ पर भी को जो वर्ड है वो यूज हो रहा है. देखिए को का मतलब ये होता है सेम साइड में होंगे. ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल की, बट एक इंटीरियर में उससे होगा, दूसरा एक्सटीरियर में से होगा. तो ऐसे एंगल्स 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, दे आर ऑलवेज इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए. देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5 विल बी इक्वल. सो एंगल 5 की वैल्यू 75 आ गई. चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, आप लोग को भी जल्दी आंसर बताना है. ठीक है. ओके. Okay, sir. सो टेल मी, इफ मैं आपको बता देता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू 40 नहीं है 140 कर दो. 40 की जगह 140, 140 डिग्रीज. आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 8. 140 degrees as we use alternate interior angles property. So 40 degree if we use co-interior angles. 40 degree. So 40 degree. 40 डिग्री कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 140 डिग्री. इन दोनों टाइप के बच्चों का एक रेसलिंग मैच करवा दें हम. बताइए जो बच्चे 40 डिग्री में ओलंपिक मेडल मिल जाएगा. So 40 degree. So Okay. 140 degree. 140 जो Sir, बच्चे 140 and degree. Sir, 140 degree. जो बच्चे 140 140 degree. अच्छा सुनो 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 मेरी बात. जो बच्चे 140 डिग्री बोल रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड इन द जूम एप्लीकेशन. हैंड रेज कर लीजिए 140 डिग्री वाले बच्चे. वेरी गुड. Sir, I will win gold medal. You will win gold medal in the wrestling match. Very good बेटा. चलो सुख सहज ने भी 140 बोला है, आयुषी ने भी 140 बोला है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ अथर also. सक्सेना सिद्धार्थ ने भी बोला है. सिद्धार्थ तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है बेटा. अभिषेक, लक्ष्मीवीर, कुंजल, आशिका यादव, all these students have said आंसर इज 140. जैस्मीन ने भी 140 बोला है, दिव्यांशी ने भी 140 बोला है, और मैंने भी 140 डिग्री बोला है. मेरा आंसर भी 140 डिग्री. दैट मींस द करेक्ट You win आंसर gold. इज 140 डिग्री. कैन एनीवन Sir, टेल मी I द also रीजन? raised it. यस बेटा हमने देख लिया. Sir, if the lines are parallel, then alternate इंटीरियर एंगल interior angles are equal. Interior angle. are equal. Yes, alternate interior angle है. Angle 2 and angle 8 are alternate interior angle. Alternate interior क्यों हो गए? Angle 2 लेफ्ट साइड में है, देखिए ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड में है. एंगल 8 ट्रांसवर्सल की राइट साइड में है या नहीं है? बताओ जल्दी बताओ. झूठ बोल रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ? No. Yes, sir. Very Yes, good. sir. So angle 2 is on the left side, angle 8 is on the right side. दोनों एंगल डिफरेंट साइड में हो गए, यानी कि ऑल्टरनेट साइड में हो गए, और दोनों एंगल इंटीरियर में है. पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं दोनों एंगल? ये इंटीरियर रीजन है पैरेलल लाइंस के बीच वाला. सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ऑलवेज इक्वल. So angle 2 is equal to angle 8. So angle 8 की वैल्यू क्या हो गई? Angle 8 is equal to 140 degree, same as angle 2. ठीक है? Sir, we won. Very good. क्या बात है. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए मैं आपको बता So रहा tomorrow हूँ. we will do these questions. We और will exercise. start the exercise tomorrow. Angle 7 की वैल्यू मैंने आपको बता दी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 130 डिग्रीज. आपको बताना है व्हाट इज एंगल 2. ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में. टेल योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ठीक है.
Okay, sir. Use the chat box for your answer. Sir, यस सर, बताइए। चैट बॉक्स में sir, these आपके two, आंसर्स sir, देख रहा हूँ these मैं। 3 students are not in our class. Sir, नो these are from प्रॉब्लम बेटा, आई नो देम। मैं उन बेचारे बच्चों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, डोंट वरी। यस, लेट मी सी योर आंसर्स। Very good, very good. Many of you have given the correct answer. Many of you have also given the wrong answer. Some of you, कोई बात नहीं, well tried. The correct answer is 50 degrees. 50. Yes. आंसर इज 50 डिग्री। कैसे बेटा? अभी अभी आप लोगों ने देखी, आज ही एक Sir, प्रॉपर्टी four पढ़ी 70 है। minus interior 130. angles property. So It does because have we are Yes. from to interior find angles. 80 degree, we Four have to minus. interior angles